Hello students, we are discussing chapter number 38, transformation of the sentences without changing their meaning. And in the previous videos, I discussed the rules of changing interrogative sentences into assertive sentences and assertive sentences into interrogative sentences. And in this video, I'm going to discuss how to change the interrogative sentences into assertive sentences which are given in the exercise number 148. I will be giving you the answers, and I remember in the last videos I asked you to change these sentences of exercise number 148 and 149, and I hope you have done that. And now I want you to open up your copies, and if you have written the answers, match your answers with the answers I'm going to give you. So we will be changing these sentences according to the rules I described in the last videos. Okay, so let's begin with the exercise number 148, in which we need to change the interrogative sentences into assertive sentences, right? So the very first sentence which they have given is, why waste time in reading novels? Why waste time in reading novels? So if you remember, while describing the rules of changing interrogative into assertive sentences, I have given you the rule of changing this kind of sentence where you will find the word why, right? I told you different cases you may find in the sentences, and one of them was the sentence beginning with why. What was the rule of changing the sentence which begins with why, and how to change it? Here in case number 4, I told you if the sentence begins with why, you will change it with it is foolish to, and after that the verb, right? The sentence, the complete sentence you will write with the verb. So if the sentence begins with why, without changing the meaning of that sentence, if you need to change it to, if you want to change that into assertive sentence, you will begin that sentence with it is foolish to, उसके बाद verb के साथ पूरा sentence शुरू कर देना है. Let's see. Now here we will begin the sentence with it is foolish to, यहाँ तक लिखा, and after that I told you to use the verb. Here the sentence is beginning with the verb waste. Okay, why की जगह पे लिख दिया it is foolish to, उसके बाद waste से जो कि verb है वहां से शुरू हो रहा है sentence, उसको as it is उठा के लिख देना है. Waste time in reading novels. It is foolish to waste time in reading novels. Though it is not a waste of time, obviously, if you read any book, if you read anything, there is never waste of time. बट अगर उन्होंने बुक में ऐसा लिखा है तो अभी हमने सेंटेंस को ऐसे ही चेंज करना है, लेकिन रीडिंग नॉवेल्स इज नेवर वेस्ट ऑफ टाइम. ओके, so let's see the second sentence. The second sentence which is given in your book is, are we born simply to eat? Are we born simply to eat is the second sentence. Now here we will follow the two steps which I give you while explaining the interrogative sentences into assertive sentences. Okay, उसके जो first two steps मैंने बताए थे उनको हमने follow करते हुए sentence को अब change करना है. What were those two steps? See here. First of all, we will move the helping verb. In interrogative sentence, the helping verb is always in the beginning of the sentence. Okay, तो हमने पहले तो उसकी position change करके उसको second number पे लेके आना है. And the second step is to convert the sentence. If it is affirmative, you will change it into negative. If the sentence is negative, you will change it into affirmative. Now let's see the sentence. Are we born simply to eat? सबसे पहले तो हमने इस sentence के जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है इस सेंटेंस में उसको चेंज करना है इसकी पोजीशन. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हुआ है? जो फर्स्ट नंबर पे है वो है आर.
Are is the helping verb here, so we will change the position of are and take it to the second position. How we will be doing that? We को आगे लेके आएंगे, we, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आ गया आर. We are born, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा. We are born simply to eat. ये कर दिया, फर्स्ट स्टेप फॉलो कर लिया. Position of the helping verb is changed. Now we will see whether the sentence is affirmative or negative. We are born simply to eat. This is an affirmative sentence because not word is not used here, so this is not negative. तो अगर ये affirmative है तो सेकेंड जो स्टेप है उसको फॉलो करते हुए हमने क्या करना है, इस affirmative sentence को हमने बना देना है negative. कैसे? We are not born simply to eat. We are not born simply to eat. This is your answer. ये बन गया एक assertive sentence. आर वी बॉर्न सिंपली टू ईट, ये है इंट्रोगेटिव. इसको चेंज करके जब हमने असर्टिव में चेंज किया, क्या बन गया वो? वी आर नॉट बॉर्न सिंपली टू ईट. एंड वी चेंज दिस सेंटेंस फॉलोइंग द टू स्टेप्स वी डिस्कस्ड इन द रूल्स. ओके, लेट्स सी द थर्ड सेंटेंस दैट सेज, कैन वी इवन फॉरगेट हर काइंडनेस टू अस? Can we ever forget her kindness to us? Now, if you remember, I told you the rules of changing this ever word. जब ये ever word use होगा interrogative sentence में, तो उसको हमने किस word में change करना था? never में. Okay? तो ये तो माइंड में रखना है कि अगर हमने इसको assertive में change करना है तो ये जो ever word है वो change हो जाएगा never में. ठीक है, चलो let's do. सबसे पहले तो वी विल चेंज द पोजिशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? कैन. तो इसकी पोजिशन चेंज करते हुए हमने इसको सेकेंड नंबर पे लेके आना है. क्या बन गया फिर वो? वी कैन एवर फिलहाल के लिए ऐसे ही रखो. वी कैन एवर फॉरगेट हर काइंडनेस टू अस. ठीक है, जब हमने आप फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है तो आपने जस्ट पोजिशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे रहने देना है. ठीक है, तो हमने जहाँ पे जस्ट पोजिशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब चेंज किया, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे लिखा है. वी के बाद कैन लिख दिया और उसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसे लिखा. नाउ वी विल सी वेदर द सेंटेंस इज affirmative or negative. We can ever forget her kindness to us. Obviously this is an affirmative sentence and we need to change it into negative. तो क्या बन जाएगा वो? We can never. Obviously negative बनाना है तो never ही करेंगे यूज, और रूल में भी हमने डिस्कस किया था कि ये ever वर्ड को हमने चेंज करना है never में, तो वो चेंज हो गया. We can never forget her kindness. So this is your answer. Sentence number 4. Can you gather grapes from thorns? Can you gather grapes from thorns? Change the helping verb. The position of the helping verb should be changed here. तो हमने क्या किया? You can. Can आ गया सेकेंड नंबर पे, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस वैसा. You can gather grapes from thorns. ठीक है, तो अब अगर उसको हमने चेंज करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि वेदर द सेंटेंस इज अफर्मेटिव और नेगेटिव, और ऑब्वियसली दिस इज एन अफर्मेटिव, तो हमने इसको चेंज करते हुए क्या बनाया? उसको नेगेटिव बनाते हुए क्या बना दिया? यू कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स. सो दिस इज द असर्टिव सेंटेंस ऑफ दिस फोर्थ सेंटेंस. ओके, अब जब मैं ये आंसर्स आपको दे रही हूँ, इसकी पिक्स ऑब्वियसली मैं आपको भेज दूंगी, लेकिन आपने अगर अपनी कॉपी पे नोट डाउन, जब आपने ये एक्सरसाइज अपनी कॉपी पे करनी है, तो जो फाइनल आंसर्स मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे, जो फाइनल आंसर है, ये जो मैंने यहाँ पे जो मैंने सॉल्व किया एक्सरसाइज, वो स्टेप बाय स्टेप आप, बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन दिस एक्सरसाइज टू यू, सो आई हैव फॉलोड द स्टेप्स. बट वाइल यू आर राइटिंग डाउन इन योर कॉपीज, you don't need to write down these answers step by step. You just write down the final answer. Okay, but अगर आपका मन है कि आपने steps follow करते हुए उनके पूरे answers लिखने हैं, तो you may write as I have written here. But अगर आप सिर्फ और सिर्फ फाइनल आंसर भी लिखोगे तो वो भी सही होगा. जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस का फाइनल आंसर जो आया है वो है ये वाला, सेकंड सेंटेंस का फाइनल आंसर है ये वाला, थर्ड का है ये वाला, ठीक है, फोर्थ का ये है you cannot gather grapes from thorns. These are the final answers, but I am following all the methods to describe you the things. Okay, let's see the fifth one now.
Who does not love his country? Who does not love his country? Now I have explained this rule of when you see who word used in the sentence. Whenever you find who in the sentence, in interrogative sentence, while changing that into the assertive one, there are two rules. Okay, first one was if who के बाद doesn't, don't या didn't use हुआ है तो आपने क्या यूज करना है? हु की जगह पे एवरीबडी, एवरीवन एंड ऑल. अगर हु के बाद ये जो नेगेटिव वाले वर्ड्स हैं वो यूज ना होकर कोई पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो आपने हु के जगह पे क्या लिखना है? नो वन या नो बडी. नाउ लेट्स सी दिस फिफ्थ सेंटेंस. वो क्या है? नो, हु डज नॉट लव हिज कंट्री. ठीक है, अब इसको हमने देखना है कि ये क्या आ रहा है, कि अब यहाँ पे डज नॉट आ रहा है. ठीक है, तो क्या आ रहा है? डज नॉट. इसका मतलब ये जो हु है इसके बाद क्या यूज हुआ है सेंटेंस में? डज नॉट. तो अगर डज नॉट यूज हुआ है तो हमने हु की जगह पे क्या यूज करना है? या तो एवरीबडी या एवरीवन या ऑल. ठीक है, तो ये तो यूज करने ही करने हैं इनमें से हमने ये कोई भी एक भी वर्ड. तो हमने क्या किया? सबसे पहले ये जो हु है उसके प्लेस पे यूज किया वर्ड एवरीबडी. ठीक है, और उसके बाद पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा लिख दिया. हु की जगह पे यूज कर लिया एवरीबडी. डज नॉट, डज ऑब्वियसली ये डज नॉट ऑलरेडी उन्होंने, ये जो डज है जो हेल्पिंग वर्ब है ये ऑलरेडी सेकंड पोजीशन पे है तो इसकी पोजीशन चेंज करने का पंगा यहाँ पे नहीं है. एवरीबडी डज नॉट लव हिज कंट्री. ठीक है, नाउ सी वेदर द सेंटेंस इज अफर्मेटिव और नेगेटिव. दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस. एवरीबडी डज नॉट नेगेटिव है तो इसको अफर्मेटिव में चेंज कर देना है. तो क्या बन जाएगा? एवरीबडी लव्स हिज कंट्री. डज नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा? लव्स, क्योंकि वी हैव टू चेंज इट इनटू एन अफर्मेटिव सेंटेंस. अब बिकॉज दिस इज डजंट वर्ड इज यूज. डजंट किस में यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. और सिंपल प्रेजेंट का अगर हमने स्टेटमेंट सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट, आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन if necessary we use s or es along with the first form of verb as we have used here, s along with love. After that the object his country. Okay, अब हमने क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट वाला है तो हमने सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से ही अफर्मेटिव भी बनाना है. ठीक है, एवरीबडी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज लव एंड उसके साथ एस, क्योंकि एवरीबडी एज सिंगुलर यूज हो रहा है यहाँ पे. अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हमने एस या ई एस लगाना होता है तो इसलिए हमने लव के साथ एस यूज किया है. हिज कंट्री. See the sixth one now. Who can become rich by adopting dishonest means? Again, the sentence is beginning with who, but this time after who, positive sentence is given. ठीक है, पहले वाला जो who था वो था who के बाद नेगेटिव सेंटेंस यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे who के बाद कौन सा सेंटेंस यूज हुआ है? पॉजिटिव वाला. ठीक है, तो अगर पॉजिटिव वाला था, मैंने बताया था, तो हमने who की जगह पे क्या यूज करना था? नो वन या नो बडी. रिमेंबर, यहाँ पे हमने जो हु वाले सेंटेंस के रूल्स मैंने आपको डिस्क्राइब किए हुए हैं. अगर हु के बाद डजंट, डोंट या डिडंट है तो एवरीबडी, एवरीवन, ऑल. और अगर हु के बाद कोई पॉजिटिव सेंटेंस है तो नो वन या नो बडी. तो यहाँ पे हु के बाद जगह पे हमने क्या यूज किया? नो वन. ठीक है, नो वन. उसके बाद पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा है. कैन बिकम रिच बाय अडॉप्टिंग डिसऑनेस्ट मीन्स. नाउ सी वेदर द सेंटेंस is negative or affirmative. Who can become rich by adopting dishonest means? No one can become rich by adopting dishonest means. ठीक है, तो ये सेंटेंस ऑलरेडी हमें आंसर यहाँ पे मिल गया. इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिस इज व्हाट वी नीड टू डू हियर. ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीडेड टू डू हियर. हमने नो वन कैन बिकम रिच बाय अडॉप्टिंग डिसऑनेस्ट मीन्स, हमने इसका आंसर सिर्फ ऐसे का ऐसे लिख देना है. इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हु के बाद पॉजिटिव सेंटेंस है. अगर हम इसको अफर्मेटिव में चेंज कर दे तो नो वन की जगह पे आ जाएगा एवरीवन. हु की रूल के हिसाब से गलत हो जाएगा. तो हमने हु के बाद जस्ट नो वन करना है यूज़ और बाकी पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा लिखना है. Next sentence is sentence number 7. What though the field be lost? What though the field be lost?
अब मैंने लास्ट में एक रूल एक्सप्लेन किया था कि अगर सेंटेंस में व्हाट इफ़ या व्हाट दो वर्ड यूज़ होंगे तो हमने कैसे सेंटेंस शुरू करना है. हमने लिखना है इट डजंट मैटर. अगर इफ़ यूज़ हुआ है तो उसके बाद लिखो इफ़ व्हाट दो यूज़ हुआ है तो इट डजंट मैटर के बाद लिख दो दो. ठीक है, तो लेट्स सी हाउ टू चेंज दिस सेंटेंस. इट डजंट मैटर दो, पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा इट डजंट मैटर लिखना है, उसके बाद दो द फील्ड बी लॉस्ट. 8th one, can a tiger change his nature? Can a tiger change his nature? Again, follow those two steps. First one, change the position of the helping verb. A tiger can, second number पे आ गया can, change his nature. Now see the sentence is affirmative or negative. This is an affirmative sentence. Change it into negative. A tiger cannot change his nature. So this is the final answer. 9th, shall we ever see her like again? Change the position of the helping verb. Here helping verb is shall. We shall ever see her like again. सेकेंड नंबर पे कर दिया. सेकेंड स्टेप कौन सा करना है? चेंज द सेंटेंस. अब ये है वी शैल एवर सी हर लाइक अगेन, एन अफर्मेटिव, बना देना इसको नेगेटिव. वी शैल नेवर, एवर की जगह पे वर्ड आ गया नेवर, सी हर लाइक अगेन. नेक्स्ट सेंटेंस इज वाज ही नॉट अ रॉग टू डू सच अ डीड. यहाँ पे पोजीशन चेंज करनी है. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब है वॉज, तो सेकेंड पोजीशन पे जब वॉज आ गया सेंटेंस क्या बन गया? ही वॉज नॉट ए रॉग टू डू सच अ डीड. अब ये नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में फाइनल स्टेप फॉलो करते हुए इसको अफर्मेटिव बनाना है, तो क्या बन जाएगा? ही वॉज ए रॉग टू डू सच अ डीड. सो दिस वॉज एक्सरसाइज नंबर 148. इस एक्सरसाइज की पिक मैं आपको वीडियो के साथ भेज दूंगी. Write down the answers in your copies. If you have already written the answers, match your answers with the answers I am giving you here. And अगर आपके आंसर्स सही हैं well and good, और अगर गलत हैं तो वो आप रूल्स को एक बार फिर से ध्यान से देखो और एक्सरसाइज के आंसर्स को प्रैक्टिस करो और इस एक्सरसाइज को प्रिपेयर करो. नेक्स्ट एक्सरसाइज विच वी आर गोइंग टू बिगिन इज एक्सरसाइज नंबर 149.